Hello everyone, welcome you all in the new lecture of Aakar IS. Myself Manas Joshi. We are going to start a new topic of the reorganization of the state, that is the Madhya Pradesh. We are going to study MPGK, and in MPGK we are going to start a new topic. So, as we will start a new topic, the formation of MP can be traced from the age of Marathas. As in the medieval history, the major part of MP has been conquered by Marathas, and Marathas have conquered the parts of MP, and they have conquered the major part of MP, as well as they have also gained some mileage by covering and by winning the parts of the western MP, that is the Malwa part, and in the northern MP as well. So that is the main area of dominance of the Marathas. And if we'll talk about the Bhopal state, in the Bhopal state there was a administration of the Nawabs and the Begums then. So the administration part of the Bhopal is under Bhopal, Sihor, Raisen is under the Nawabs of Bhopal. And if we'll talk about the rest of the part, that is the part of Baghelkhand. It was ruled by the Baghel kings. And there are many petty kings, many small kings which were there in that particular region. So this is the scenario before the British conquest on Madhya Pradesh, on the Madhya Pradesh. So that is the story behind it. So it is the initial story, and then we can see that how the Britishers have conquered and have fought against the Marathas, how they have controlled the territories of the Bhopal state as well as the Bundelkhand as well as the Baghelkhand also. They have conquered those areas, and after the conquer of these areas, the Britishers have uniformly executed their own form of administration in these areas. In these areas, they have executed their own form of the administration. We will all see in these in this lecture, and we will all discuss about these lecture. So, we will start our lecture from the definition of state first. We will start our lecture from the definition of state. So please remember, हम क्या कर रहे हैं, हमारी definition जो है वो क्या कर रहे हैं, state की definition से start कर रहे हैं. This definition of state has been mentioned in Indian Constitution. The definition of this state is mentioned in Indian Constitution. तो Indian Constitution में किस जगह हमको state की definition मिलती है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, discuss कर रहे हैं, and we will discuss the definition of the same thing. If we talk about it, about the definition of state, if we'll talk about it, the definition of state can be seen in the article. In the Article 12, we can see the definition of state. In the Article 12, we can see the definition of state. What it's tell? The definition means that state terms that have been used in the Part 3 of the Constitution while mentioning the application of the provisions of the fundamental rights of the citizen. So when the application of fundamental rights has been discussed in our constitution, at that time the definition of the state has been mentioned in the Article 12. उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट की डेफिनेशन जो है आर्टिकल 152 में भी क्या करी गई है, मेंशन करी गई है. किसमें मेंशन करी गई है? आर्टिकल 152 में भी क्या करा गया है, स्टेट की डेफिनेशन को मेंशन किया गया है. If we here discuss about Article 152, it mentioned that the Constitution of India states that the governors are the governors appointed for the state, and the state does not include Jammu and Kashmir. So this is the definition which was mentioned in Article 152. So there are two definitions which was given in these articles, that is the Article 12 as well as Article 152. In your examination pre में direct question के form में पूछ लिया जाएगा कि किस article के अंदर जो है आपके किसके बारे में definition के बारे में discuss किया है. So you have to remember the definition also. You have to remember the part of the definition also. You have to remember the definition also. So please इन दो articles को आप क्या करिए, याद रखिएगा. If we'll move further and discuss about the MP state and how it has been formed, तो सबसे पहले हमने को देखने को मिलता है, we have seen the journey up to the part of the Maratha kingdom, up to the part of the Maratha dominance, and how जो है part में क्या था आपका भोपाल स्टेट में dominance था. Then we are also having Baghel kings, and in the northern जो है वो बुंदेलास kings के जो petty rulers हमको देखने को मिलते हैं. The MP has been divided in small kingdom and kingship, जो है हमको देखने को मिलती है. Small ठिकानेदार, जमींदार, जागीरदार भी हमको क्या देखने को मिलते थे इस सिस्टम
में हमको एग्जिस्ट करते हुए दिखते थे। तो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग। इफ वी विल मूव फर्दर एंड वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में अगर डिस्कस करें, हम किसके बारे में डिस्कस करें, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस करें, तो इट इज द मैप विच वाज रिलीज्ड ऑफ द 1909 का क्या है, आपको एक मैप भी दिख रहा है मेरे पास में। अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें या उसके बारे में डिस्कस करें, तो ब्रिटिशर्स हैव कैप्चर्ड नागपुर। प्लीज डू रिमेंबर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, तो ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन सब्सिडरी अलायंस एंड देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या करवा ली थी, साइन करवा ली थी। क्या करवाया था, पहले दे हैव साइंड दी सब्सिडरी अलायंस एंड देन दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके कारण से क्या हो गया था, ऑल दी इंडिजिनस रूलर्स हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। पहले इन्होंने क्या करा था, एक रेसिडेंस बिठाया था, देन दे हैव सिस्टमेटिकली मर्ज्ड द टेरिटरीज इन देयर ओन ब्रिटिश स्टेट, और इसी से क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या हुआ, इंक्यूबेशन हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यूज किया गया। अगर हम आगे बढ़े और आगे डिस्कस करें, then we will see that Britishers have captured the Nagpur in 1853. Britishers have captured the Nagpur in 1853. On 11th December they have captured it, and they have also captured it the southern and the eastern part of MP. They have also captured the southern and the eastern parts of MP. Then what we will see that the British government then ruled the administrated part and divided into certain parts. क्या करा है, एमपी के कुछ सर्टेन पार्ट्स को क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया, फ्रॉम द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर लिया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा। इफ यू सी दी फ्रॉम द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन ब्रिटिशर्स हैव डिवाइडेड दीस पार्ट्स, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो सबसे पहला पार्ट है सेंट्रल प्रोविंसेस। फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल प्रोविंसेस। द सेंट्रल प्रोविंसेस हैव बीन फॉर्म्ड ऑन 2 नवंबर 1861। प्लीज रिमेंबर दिस डेट, 2 नवंबर 1861 इस डेट को याद रखेगा। इट इज द फाउंडेशन डेट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस। आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो है प्री में क्या करी जा सकती है, पूछी जा सकती है, इवन इन 3 मार्कर ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड। Then what we can see that and Barar वाला section कब फॉर्म हुआ था, 24th of October 1936. So Barar section has been formed on 24th of October 1936. Then what we can see, the rest of the part are known as the Central India Agencies. The rest of the part are known as the Central India Agencies. Here you can see that there is a map. ये क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, this is the part of Central India Agency. क्या दिख रहा है, Central India Agencies दिख रहा है। Please do remember क्या दिख रहा है, Central India Agencies. Then what we can see, this part, this yellowish and the pinkish part which is common is it is the central provinces. It is the central provinces, and the rest of the part is the Barar part. This is the Barar part. So these are the major parts which you can see in this lecture. ये जो है डायरेक्टली आपको क्या दिख रहे हैं, ये पार्ट्स जो है आपको क्या दिख रहे हैं, फ्रैक्शंस में आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये फ्रैक्शंस और ये पार्ट्स क्या करिए, जरूर जो है वो याद रखिए, जरूर इस पे क्या रखिए, इनकी डेट्स याद रखिएगा, इस ज्योग्राफिकल लिमिट को भी याद रखिएगा। इट इज वेरी क्रूशियल व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन में जब लिखेंगे तो ये मैप आपको ड्रॉ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमपी, तो इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। Next what we can see, the administration has been seen from the Nagpur. कहां से देखने हैं, administration has been run from the Nagpur. Then what we are having there, we are having 3 parts of the state. They are having 3 parts of the state. The Central India Agency is constituting actually 2 parts. कौन कौन सा पार्ट्स है, तो there is मध्य भारत, कौन सा पार्ट है, मध्य भारत and the विंध्य प्रदेश। There is 2 part of it, मध्य भारत और कौन सा पार्ट था, विंध्य प्रदेश। क्या है, किसके अंडर में इंक्लूड था, तो सेंट्रल इंडिया एजेंसीज के अंडर में था। किसके अंडर में था सर, सेंट्रल इंडिया एजेंसीज के अंडर ये पार्ट्स हमको देखने को मिलते थे। एंड नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी दैट भोपाल स्टेट वाज हैविंग इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज वेल। हमको क्या देखने को मिल रहा था, भोपाल स्टेट की भी अपनी क्या थी, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखने को मिलती थी। अगर हम बात करें इसके अलावा भी सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर में जो है एक सेक्शन कौन सा आता था, बरार आता था। दूसरा जो है विदर्भ का नॉर्दर्न पार्ट भी क्या होता था, इसमें कवर होता था। प्लीज रिमेंबर, जो ये सदर्न पार्ट आपको दिख रहा है बरार से लगा हुआ, ये कौन सा आता था, विदर्भ का जो है आपको कौन सा आता था, नॉर्दर्न पार्ट भी क्या होता था, विदर्भ का भी कुछ पार्ट इसके अंदर क्या होता था, कवर होता हुआ दिखता था। So this is the part of it, and this is the original situation, or this is the original scenario of that time. You have to remember this original situation and the original scenario of that time. ये आपको क्या करना है, याद रखना है, because it is very crucial from your exam point of view. If we'll talk about the areas in which the states were dominating, or the Britishers were dominating, so the Britishers were directly ruling the areas of the central provinces. The Britishers were directly involved in the areas of the central provinces. They are directly involved, as well as in Barar also. They are directly involved. They are directly involved in this area.
एंड इट इज इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ महाकौशल। कौन सा रीजन हो रहा था इसमें? मेजर महाकौशल वाला रीजन जो हो रहा था वो क्या हो रहा था? डोमिनेटेड हो रहा था। कौन सा एरिया डोमिनेटिंग था? महाकौशल वाला एरिया क्या था सर? डोमिनेटिंग था। So it is directly ruled by the Britishers. Then the Central India agencies were under the kingship, who have accepted the dominance of Britishers, and they have signed the Treaty of Lapse also. Then what we can see the Bhopal state also. सो द किंग इज जस्ट अ पैटी रूलर। एक पपेट की तरह क्या होता था? ब्रिटिशर्स इसको क्या करते थे? ब्रिटिशर्स जो है अपने ऑर्डर्स को क्या करते थे? डिलीवर करते थे किसी के भी सामने। सो दिस इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग दिस थिंग जो क्या कर रहे थे आपके ब्रिटिशर्स, इस तरीके से रूल कर रहे थे। अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के आसपास के टाइम, अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के टाइम को, अगर हम देखें इंडिपेंडेंस को ऑब्जर्व करें, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी कैन सी दैट बिटवीन 1947 टू 1956 की सिचुएशन को हम क्या करते हैं? और एनालिसिस करते हैं और इसके बारे में देखते हैं और इसको क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज करते हैं। So what we can see after the independence, there is Madhya Bharat, then we can see Vindhya Parishad, then what we can see the central provinces and Berar, and the Bhopal state was there, which was redistributed under the part ABC state, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया था? पार्ट ABC स्टेट में। So it was the story at the in the part of the from the 1947 to 1956 की क्या होती है? एक स्टोरी है। इस स्टोरी की तरफ ले जाने के पहले what I want to tell you that how it has been formed when we have got our independence। जब हमको हमारी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, then there is a movement जिसमें कि हमने यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री करा गया। क्या करा गया? there is unification of country has occurred and Sardar Vallabhbhai Patel has successfully united all the Indian territories in the form of Indian Union। क्या किसके फॉर्म में? at the form of Indian Union। Then there is a discussion कि किस तरीके से स्टेट्स का क्या होगा? फॉर्मेशन करा जाए, किस तरीके से स्टेट्स को क्या करा जाए? फॉर्म किया जाए, किस तरीके से स्टेट को कंस्ट्रक्ट किया जाए, ये जो है क्या होने लगा? डिस्कशन होने लगा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर डिफरेंट कमिटीज, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स वर फॉर्म्ड हु आर डिमांडिंग फॉर अ स्टेट। देयर इज अ हेवी डिस्कशन, एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि स्टेट को किस बेसिस पे क्या करा जाना चाहिए? फॉर्म किया जाना चाहिए। स्टेट को किस तरीके से क्या किया जाना चाहिए? फॉर्म करा जाना चाहिए, या फिर स्टेट को किस तरीके से क्या करा जाना चाहिए? उसका बेस रखा जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही हेवी डिस्कशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ? हमारे यहाँ स्टेट की डेफिनेशंस को प्रमोट किया गया, स्टेट की डेफिनेशंस को एग्जीक्यूट किया गया। देयर आर डिफरेंट कमिटीज विच वर फॉर्म्ड इन दिस एरा। कौन कौन सी कमिटीज है? तो हम एक बार नाम देख लेते हैं जो क्या करी गई स्टेट को बनाने में या फिर स्टेट की डेफिनेशन को बनाने में क्या हो रही थी? डिफरेंट रोल्स क्या कर रही थी? प्ले कर रही थी, या फिर डिफरेंट रोल्स को क्या कर रही थी? एग्जिबिट कर रही थी। अगर हम कमिटीज के कुछ कमिटीज के नाम देखें जो कि क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा क्रूशल या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उन कमिटीज के नाम हम देख लेते हैं कौन कौन सी कमिटीज है। तो देयर इज कमिटी एस.के. धर कमिटी। कौन सी है? एस.के. धर कमिटी is one of the committee which was formed in 1948. Then there is another committee which is JVP committee. JVP committee which was formed in ईयर 1948 ऑल्सो। 1948 1949 के आसपास क्या हुई? ये कमिटीज फॉर्म हुई। इन कमिटीज को क्या रखा गया? इन कमिटीज का बेस रखा गया। इफ विल टॉक अबाउट दीज कमिटीज हैव एडवोकेटेड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लिमिट, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है क्या करा गया? एडवोकेट किया गया कि द बाउंड्रीज शुड बी क्रिएटेड और द स्टेट शुड बी डिवाइडेड। सो ऑन दिस बेसिस जो है ये कमिटीज बनाई गई थी। जो है जेवीपी कमिटी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें जो है आपके बहुत अच्छे लीडर्स थे, बहुत वेटरन लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। तो उन्हीं के नाम पे जेवीपी कमिटी थी। एंड दीज टाइप ऑफ कमिटीज हैव रिकमेंडेड दैट द स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होना चाहिए? स्टेट को फॉर्म करा जाना चाहिए। सो दिस इज द कॉमन कॉज विच हैज बीन नेम्ड, और इस तरीके से क्या हुआ? ये कमिटीज हुई। But there is aggression which was going among the people। एक बहुत ही क्या agitation जा रहा था that the state formation should be on the linguistic basis। The state formation should be on the linguistic basis। किसके basis पे होना चाहिए? state का formation जो है किसके basis पे होना चाहिए? तो language के basis पे। किसके basis पे? On the basis of language the state should be formed। If we'll talk about why on the basis of language the state should be formed, so there is a wholesome lot
revolution, there is wholesome lot riots were happening, and the main center was of the conflict, or the main location of the conflict is the part of Andhra Pradesh. Is the part of the Andhra Pradesh. We are having an evidence of Potti Shrimal Lagu, who has died in the hunger strike. क्या हो गए थे? डेथ हो गई थी पोटी श्रीमल लागू की, जो है डेथ हो गई थी, जिसके कारण से आंध्र प्रदेश में क्या हो गए थे? There was a big riots which have conducted in that particular region. और उसके कारण से क्या हुआ था? There is an agitation sort of situation, and there was a heavy pressure on the government that the decision should be made on the basis of the linguistic basis. और यहीं पर जो है हमको गवर्नमेंट के डिसीजन में जो है पहला लिंग्विस्टिक बेसिस के जो स्टेट है उसकी पहली बार हमको क्या बनता है? नोटिस मिलता है। वो स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। Then the demand has been created in every part of the country कि there should be the formation of the state should be on the basis of linguistic basis. On the basis of linguistic basis, the state should be reorganized. So there is a state reorganization commission which has been formed under Fazal Ali. Under Fazal Ali, there was a state reorganization commission has been formed. State reorganization commission form हुआ किसके अंडर में? फजल अली के अंडर में. And the state formation, state reorganization was a important element in this case. अगर हम state reorganization commission की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम state reorganization commission की बात करें, फजल अली commission की बात करें, तो फजल अली commission is having the member with it. उसके साथ क्या था हमको? There was the members which we can see in the commission also. The member of state reorganization commission, the member of फजल अली commissions are, अगर हम फजल अली कमीशन के मेंबर्स की बात करें, if we'll talk about the members of फजल अली कमीशन, so there was an state reorganization commission which has been formed. इसका नाम क्या था? तो फजल अली कमीशन. If we'll talk about फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन is having 3 members. कितने हैं? 3 मेंबर्स थे. कौन कौन से? तो खुद जस्टिस फजल अली, as well as the second member is the H.N. Kunjru. Then the third member is K.M. Panikar. So these are the 3 members of the state reorganization committee. There were 3 members and they have advocated to form state form करने की recommendation दी on the basis of they have recommended to form a state on the basis of the language. किसके basis पे? On the basis of language they have advocated the formation of state. क्या करा? Advocated करा on the basis of state. क्या करा? आपको जो है वो फॉर्मेशन करा. प्लीज मेंबर्स के नाम याद रखिएगा. आपके कौन कौन से हैं? दी मेंबर्स आर, देयर आर मेंबर्स. पहले जो है मेंबर कौन कौन से हैं आपको जस्टिस फजल अली पता चलेंगे. सेकंड मेंबर यू कैन फाउंड, द सेकंड इज दी Hridayanathan Kunjru, and then we can see that the third member is K.M. Panikar. So these are the 3 members of the state reorganization commission. ये तीनों मेंबर थे किसके? स्टेट reorganization commission के. So as per their recommendation, as per the state reorganization commission, we can see that as per the recommendation we can see that the state was reorganized in this form. In the 1950s we can see that the state were reorganized on the basis of, in the category of, we can see that the state was reorganized. The state was reorganized, and we can see that the state was reorganized under the state was reorganized in 1950. We can see that part A is consisting the 9 states. Part A में कितने थे? 9 state, and form the governor provinces, what they are known as the governor provinces. Then we can see that was part B, that is the part B, in which we can see that the former princely province there. In part B there were former princely provinces were there. And what we can see, there was part C also. कौन सा है? Part C. And part C, what we can see, in the part C we are having the 10 states. Part C में कितने हैं? There are total 10 states which were there, the part of the former chief commissioners. They are the chief commissionerate provinces. They are the chief commissionerate provinces.
So these are the three provinces which we can see, and which were the commissioner provinces were directly under the president, were directly under the president. What we can see, there was part D state also, and what we can see, there was only one area which was under the part D state also. ये part D state का कौन सा area था? The only area which was under it is the area of the Andaman area, that is the Andaman area. So the same scheme was reorganized in the scheme of Fazal Ali Commission. In the scheme of Fazal Ali Commission क्या हुआ, ये सेम स्कीम को क्या करा गया, इम्प्लीमेंट किया गया, इसको क्या करा गया, एग्जीक्यूट करा गया। और हमें ये देखा गया, हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है फजल अली कमीशन की ही रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे हमको क्या देखने को मिला, हमको जो है स्टेट वापस से रीऑर्गेनाइज दिखा आफ्टर इंडिपेंडेंस इन फॉलोइंग पार्ट्स। हमको क्या देखने को मिला, इन द फॉलोइंग पार्ट्स द स्टेट हैज बीन रीअरेंज्ड इन द फॉलोइंग पार्ट्स। So in what parts the state has been rearranged? Then we can see that the constituted part, what we can see, that first part is the central province. The first part is the central province and Berar. कौन सा है? Central province and Berar. इट इंक्लूड्स मॉडर्न डे कौन कौन सा है, तो महाकौशल और छत्तीसगढ़ वाला पार्ट इंक्लूड होता है इसमें। कौन कौन सा? महाकौशल एंड छत्तीसगढ़ पार्ट इज बीन इंक्लूडेड। सो व्हाट इज द महाकौशल पार्ट? तो महाकौशल इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ कटनी, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर एंड छिंदवाड़ा। सो दिस इज द होलसम लॉट डेफिनेशन ऑफ महाकौशल। ये किसमें आता है? डेफिनेशन में आता है, किसकी? महाकौशल की डेफिनेशन में आता है। एंड द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन। कौन सा पार्ट है? तो छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन। And the combined capital of this region, the combined capital of central province, ये तो central province हो गया। कौन कौन सा पार्ट? आपका महाकौशल और छत्तीसगढ़ वाला पार्ट। एंड द बरार पार्ट इज इन दी पार्ट ऑफ नागपुर। नागपुर की जो पेरीफेरी वाला आपको एरिया देखने को मिलता है, वो पार्ट क्या देखने को मिलता है आपको? बरार कहलाता है। उसको क्या बोला जाता है? बरार कहा जाता है। पहले जो ये गॉन किंग्स के अंडर में था, देन इट हैज बीन गॉन टू द भोसलेस, Then it is gone to the भोसलेस। भोसलेस से किसके पास आया? भोसलेस से जो है आपके ब्रिटिशर्स के पास आया। एंड यू कैन सी दैट दे हैव डिक्लेयर्ड नागपुर एज इट्स कैपिटल। क्या हो गया है? नागपुर जो है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया था? कैपिटल जो है वो क्या करा था? नागपुर को डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी दैट दिस डिवीजन ऑफ the part A state is having 5 divisions as well as 22 districts were included in। कितने divisions थे? 5 division थे। और कितनी districts थी? 22 districts क्या थी इसके अंदर located थी। and we can see that the CM कौन थे यहाँ के? तो CM हमको देखने को मिलता है पंडित रविशंकर शुक्ला क्या थे? इसके CM थे। and the governor is E राघवेंद्र राव क्या थे? गवर्नर थे। प्लीज डू रिमेंबर, गवर्नर कौन थे? E राघवेंद्र राव was the governor. Next what we can see, there was exception which was there in this, the exception is the Makdai Riyasat. The exception is the Makdai Riyasat of Harda. So the Makdai Riyasat of Harda is in the part A state। कहां पर आ रही थी? तो is in the part A state। कहां पर आ रही थी? is in the part A state। only province of the central province which is still under the मध्य भारत। बाकी जो है बस्तर वाला रीजन था। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? तो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? तो बस्तर जो है इसकी क्या थी? सबसे बड़ी प्रोविंस थी। कौन सी सबसे बड़ी प्रोविंस थी? सो द बस्तर इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इट। बस्तर क्या थी? सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस जो थी वो कौन सी थी? बस्तर थी। कौन सी थी? बस्तर जो है वो क्या थी? सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस थी। So if we'll talk about the reorganization of state, the reorganization step में part A में हमको क्या देखने को मिलता है? That there are 2 parts। कौन कौन सा है? तो there is the part of the central province। कौन सा है? central province, जिसमें क्या क्या देखने को मिलता है? हरदा जो है अकेली ऐसी रियासत थी। कौन सी थी? हरदा ऐसी रियासत थी जो क्या है? central province के पार्ट में आती है। This is the कौन सी? इसमें भी मकड़ई रियासत। कौन सी है? मकड़ई रियासत जो है वो अकेली रियासत थी। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है। प्लीज रिमेंबर, ये क्या आ चुका है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दी सेकेंड वन इज दी कौन सी सबसे बड़ी रियासत थी? तो सबसे बड़ी रियासत या सबसे बड़ी प्रोविंस कौन सी थी? बस्तर इज दी लार्जेस्ट प्रोविंस। कौन सी थी? बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में आता है वो क्या थी? सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी अबाउट दी पार्ट बी स्टेट। कौन सा देखने को मिलता है हमको? पार्ट बी स्टेट देखने को मिलता है। इफ विल टॉक अबाउट दी पार्ट बी स्टेट, दी पार्ट बी स्टेट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन दी 28 मई 1948 को। अब 28 मई 1948 को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडेड इन दी
पार्ट बी, कौन सी, मध्य भारत को क्या करा गया, पार्ट बी में इंक्लूड किया। हियर यू कैन सी द मैप ऑफ मध्य भारत ऑल्सो, आपको मध्य भारत का मैप दिखेगा जिसमें आपको दो बड़ी डायनेस्टीज का डोमिनेंस देखेगा। कौन सी, ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे किंग्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी किंगशिप यहाँ पर देखने को मिलती है, बट देयर आर टू स्पेशल पावर्स हु आर डोमिनेटिंग इन दिस एरिया। कौन कौन सी है, सो देयर वाज द होलकर्स, there was the Holkars, as well as we can see in the Gwalior area we are having the Sindhyas। कहां पर है, तो एक जगह होलकर और एक जगह हमको सिंधियास देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन होलकर्स एंड सिंधियास वर डन इन दिस एरिया। इस एरिया में इन दोनों पावर्स को क्या करा गया, अकोमोडेट किया गया और इनको क्या करा गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैज बीन डन विद देम। यू कैन सी द सेम थिंग इन दिस कंसर्न आल्सो। इसका एक और नाम था, पार्ट बी स्टेट का एक और नाम था, क्या नाम था, मालवा यूनियन। प्लीज डू रिमेंबर, इसका एक और क्या नाम था, तो मालवा यूनियन। क्या नाम था सर, तो it is also named as the Malwa Union. It is also named as the Malwa Union. Next, what we can see that it was having two capitals because to keep the balance of power, कितनी capital रखी? There are two capitals of this territory. कौन कौन सी थी? तो there is winter capital कौन सी थी? ग्वालियर थी। और summer capital कौन सी थी? इंदौर थी। Please remember, winter capital कौन सी थी? ग्वालियर थी। और summer capital कौन सी थी? इंदौर थी। And apart from it, what we can see there, it include around 26 principalities. कितनी प्रिंसिपलिटीज थी इसके अंदर, तो देयर इज 26 प्रिंसिपलिटीज एंड 16 डिस्ट्रिक्ट्स। कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 16 डिस्ट्रिक्ट्स। ये प्रिंसिपलिटीज क्या थी, तो दे आर द स्मॉल चीफ्स और स्मॉल किंग्स और ठिकानेदार या फिर जागीरदार जिन्हें बोला जाता है, वो जो थे वो क्या कर रहे थे, इस एरिया में हमको डोमिनेटिंग होते हुए, क्या होते, डोमिनेट करते हुए दिखते थे। नेक्स्ट वर्क वी कैन सी एज पर द राज प्रमुख की बात करें तो हु वाज द राज प्रमुख, सो द राज प्रमुख इज जीवाजी राव सिंधिया जी। कौन थे, तो राज प्रमुख कौन से थे, जीवाजी राव सिंधिया जी जो क्या थे, राज प्रमुख थे। इन्हें जो है ग्वालियर में जो है बाय रिस्पेक्ट जो है वो बड़े महाराज के नाम से भी बोला जाता है। तो दी जीवाजी राव सिंधिया वाज दी राज प्रमुख। एंड उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख कौन थे, तो यशवंत राव होलकर। कौन से थे, यशवंत राव होलकर। सो यू कैन सी द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन दी ग्वालियर हाउस, बिटवीन दी ग्वालियर एज वेल एज व्हाट वी कैन सी बिटवीन दी इंदौर। हमको क्या देखने को मिलती है, होलकर्स एंड सिंधियास के बीच में क्या देखने को मिलती है, बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलती है। इसको आप चाहें तो होलकर्स और सिंधियास भी लिख सकते हैं, किसके बीच में, तो आपको दिख सकता है किसके बीच में, सो दी सिंधियास और होलकर्स के बीच में क्या देखने को मिलती है, हमको एक बैलेंस ऑफ पावर की यहाँ पर भी इक्वेशन देखने को मिलती है यहाँ पर। So Britishers are good in it. Britishers were forming it in a very good form, and when the state was being reorganized, तो हमारे यहाँ के भी लोगों ने ऐसी कोशिश करी that these chieftains were been given some privilege, जिसके कारण से एक balance of power जो है उस एरिया में क्या रहे, हमेशा बनी रहे। They have accepted to being in the Indian Union itself, Indian Union का पार्ट बनने के लिए acceptance दी थी। तो इसी कारण से हमको क्या देखने को मिलता था, that they should be treated in a proper form. So their power has been not yet diluted here. वो जो है बहुत later on हमको इंदिरा गांधी जी की सरकार में हमको क्या दिखेगा, that they have brought privy purse, जिसके कारण से the powers and the privileges of the royals have been cut off. तो वो पॉलिटी का पार्ट हमको क्या है लेटर ऑन आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिलता है, सीएम कौन देखने को मिलते हैं इस एरिया के, हमको लीलाधर जोशी जी देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, लीलाधर जोशी देखने को मिलते हैं सीएम। नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिलते हैं, देयर आर डिफरेंट पीपल हु हैव बीन ऑन द पोस्ट ऑफ सीएम इन दिस एरिया। कौन कौन से थे, तो हमको गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी भी देखने को मिलते हैं, तख्तमल जैन भी देखने को मिलते हैं, मिश्रीलाल गंगवाल जी भी देखने को मिलते हैं। और फिर बाद में वापस से किसका बनता है, तो वापस से तख्तमल जैन क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। तो देयर आर डिफरेंट पीपल हु हैव बीन ऑन द पोस्ट ऑफ सीएम इन दिस रीजन ऑफ द पार्ट बी स्टेट में क्या देखने को मिलते हैं, आपको पावर्स देखने को मिलती है किस किस के पास, लीलाधर जोशी जी, देन गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी के पास, देन तख्तमल जैन एंड देन मिश्रीलाल गंगवाल। और उसके बाद फिर मिश्रीलाल गंगवाल जी के बाद वापस कौन बनते हैं, तख्तमल जैन जो है पोस्ट पे आते हैं, किसकी, सीएम की पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी इन द पार्ट सी स्टेट, अगला कौन सा पार्ट है, इट इज द पार्ट सी स्टेट। कौन सा आता है सर, पार्ट सी स्टेट वाला पार्ट आता है। इफ विल टॉक अबाउट द पार्ट सी स्टेट, if we'll discuss about the part C state, it include Vindhya Pradesh। कौन सा पार्ट रहता है इसके अंदर, it include the Vindhya Pradesh, and what we can see that Vindhya Pradesh is combined of the बघेलखंड and बुंदेलखंड। कौन कौन सा पार्ट इसमें कंबाइन होता है, the part of बघेलखंड और बुंदेलखंड क्या होता है इसके अंदर कंबाइन होता है। और ये एस्टेब्लिश कब किया गया था, so it has been established on 12th of March 1948। कब एस्टेब्लिश किया गया था, it has been established on 12th of March 1948। and next what we can see that it was having principalities also, what we can
can see that it was having some principalities also. कौन कौन से रहते थे? तो on the 4th of March 1948 what we can see established कब हुआ था? तो प्लीज डू रिमेंबर जो है 12th of March 1948 को हुआ था, और उसके बाद 4th मार्च को हमको कितने हुई थी? इसके अंदर 35 प्रिंसिपलिटीज क्या हुई? और ऐड हो गई। उसके बाद क्या हो गए? देन वी कैन सी दैट इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट ऑन द 1st of January 1950। So there were two definitions। एक definition क्या बोलती है? एक definition बोलती है कि it has been recognized or established as the state on the date of 12th of March 1948 and recognized as the state on the 1st of January 1950। On the 1st of January 1950 the part are the part C, that is the Vindhya Pradesh, which include the part of Bundelkhand as well as the part of Baghelkhand। बुंदेलखंड और बघेलखंड को क्या करते हैं? यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी, द सीएम ऑफ दिस एरिया कौन थे? सीएम तो द सीएम इज द शंभुनाथ शुक्ला जी। कौन थे? शंभुनाथ शुक्ला जी। विच वाज अंडर देन द राज प्रमुख वाज मार्तंड सिंह जी। कौन थे? द मार्तंड सिंह जी वाज द राज प्रमुख ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। यू हैव टू रिमेंबर अबाउट मार्तंड सिंह जी for a very specific reason। For a very specific reason you have to remember about him। The reason of remembrance of Shri Martand Singh ji is that he the white tiger safari which was there in the Satna district, the white tiger safari which was there in the Satna district was named after Martand Singh ji, was named after Martand Singh ji, and he was the first one to catch the white tiger। क्या होता है? He was the first one to catch the white tiger and to keep the white tiger in the captivity। जो है वो किसके क्रेडिट दिया जाता है? मार्तंड सिंह जी को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। और यहाँ पर जो है टाइगर का नाम जो था वो क्या था? मोहन था। टाइग्रेस का नाम क्या था? राधा था। वहीं से हमको देखने को मिलता है कि एवरी व्हाइट टाइगर विच वाज इन द कैप्टिविटी इन एंटायर वर्ल्ड इज हैविंग द सेम जीन्स और हैविंग द सेम लीनेज ऑफ मोहन एंड राधा। So he was the first one to do so। He was the first one to do so। So you have to remember Shri Martand Singh ji also। Please remember white tiger safari जो है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती, वो कहाँ पर आती है? सतना डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, ये भी छोटा सा पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट दी पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी स्टेट। किसके बारे में है? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट के बारे में हमने क्या करा? डिस्कस करा। और उसके बारे में क्या करा? हमने इसको देखा। होपफुली यू हैव रिमेंबर्ड, यू हैव गॉट understood all those things, all the important thing आपको क्या हो गई? समझ में आई होगी, and you are not having problem in any sort of any form। If you'll see there was another state। अगर पार्ट ए बी सी के बाद देखें तो देयर वाज अनदर स्टेट, दैट इज द भोपाल स्टेट आल्सो। देयर वाज भोपाल स्टेट आल्सो। इफ वी टॉक अबाउट द भोपाल स्टेट, तो भोपाल स्टेट हैज बीन is declared as the independent state up to 1948 up to 1949 actually। in 1949 on the 1st June they have became the merged into the Indian Union। They have merged into the Indian Union and the Raj Pramukh was Nawab Hamidullah was the Raj Pramukh of it। Nawab Hamidullah, the last Nawab, was the Raj Pramukh of it, and the CM was, if we'll see, and the CM was Shankar Dayal Sharma ji। Shankar Dayal Sharma ji was the CM। Later on Shankar Dayal Sharma ji has became the president of India। Later on he has became the president of India। If we'll see the next thing, that on the 1st June as we have discussed it is became the part C state part। it has become the part C state में आ गए थे। and what we can see for administrative it has been divided into, later on it has been divided into भोपाल डिस्ट्रिक्ट क्या हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से जो है वो डिवाइड हुई थी किसके बीच में? भोपाल और सीहोर के बीच में इन द ईयर 1972। 1972 में क्या हुई थी? ये डिस्ट्रिक्ट क्या हुई थी? लेटर ऑन डिवाइड हुई थी। तो ये जो है हम क्या देख सकते हैं? एविडेंटेड फॉर्म में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं किस तरीके से हमारा स्टेट जो है वो स्टेट की जो डिफरेंट टेरिटरीज है वो किस तरीके से मर्ज हुई पार्ट ए बी और सी स्टेट्स में। किसमें? पार्ट ए बी और सी स्टेट्स में किस तरीके से मर्ज हुई, ये हमने क्या करा? अभी देखा, और ये हमने क्या करा? अभी समझा। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं और फिर क्या करते हैं? इसी की चीज के बारे में और डिस्कस करते हैं और क्या करते हैं? हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड वी विल मोर स्टडी अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। वी विल मोर स्टडी अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।